اور اب خبریں تفصیل سے۔ جموں میں کانگریس پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد کے بھتیجے مبشر آزاد نے آج بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ بی جے پی نے مبشر آزاد کا پراتفاق خیر مقدم کیا ہے۔ واضح ہے کہ ایک عرصے سے مبشر آزاد اور راہل گاندھی کے گہرے مراسم تھے، تاہم سیاست میں کون کب کس کا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ مبشر آزاد کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم مودی کے نظریات اور ترقیاتی کاموں سے بہت متاثر ہیں، اس لیے بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کانگریس پر آپسی لڑائی کا الزام لگایا۔ پارٹی میں آنے کا اس کا سارا ڈیولپمنٹ، اس کے جو مودی جی کے خیالات ڈیولپمنٹ وغیرہ، اس سارے چیزیں میرے کو اچھی لگی، تو اس لیے میں اس میں آیا۔ کیونکہ بیسیکلی میں بچپن سے کانگریس میں ہی رہا ہوں، تو کانگریس میں نے صرف لڑائیاں دیکھی، جو آج کی ڈیٹ میں بھی وہ الگ الگ سسٹم، پارٹی والا سسٹم، ایک پارٹی میں دو چار لوگ ایڈوائزر ہیں، کوئی کیا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے اس میں کیا ہے کیا، صرف لڑائیاں۔ تو گراؤنڈ لیول پہ کچھ کام نہیں ہے، صرف کاغذوں میں ہے، کاغذوں میں نہیں ہوتا ہے، تو ہر چیز جو ہوتا ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ ہونا چاہیے۔ جب سے مودی جی آئے تب سے مجھے لگا کہ سب کچھ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے، اس لیے میں بی جے پی میں آ گیا ہوں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور خاص کر مودی صاحب کا جو نعرہ ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس، سب ہمارے ہیں، وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، سکھ ہیں یا عیسائی ہیں، جموں کے ہیں یا کشمیر کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ ہمیں سب کی فکر ہے اور ہم نے سب کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ میں آج مبشر آزاد صاحب اور ان کے تمام ساتھی دوست جنہوں نے آج بھارتیہ جنتا پارٹی کا دامن تھاما ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پیپلز کانفرنس کے لیڈر سید بشارت بخاری نے آج اپنے آبائی گاؤں کریری کے نوجوانوں کی ایک میٹنگ سے خطاب کیا۔ بشارت بخاری نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ جموں کشمیر کو درپیش سیاسی و دیگر معاملات و مسائل کے بامانہ حل کے لیے آگے آئیں، پیپلز کانفرنس کا ساتھ دیں اور بھرپور طریقے سے حصے دار بنیں۔ انہوں نے نوجوانوں سے مخاطب ہونے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حد بندی کمیشن کی رپورٹ پر وہ تب تبصرہ کریں گے جب اس کی مکمل رپورٹ عوامی حلقوں میں آئے گی۔ جو رپورٹ جو آئی تھی وہ ایم پیز کو دی گئی تھی اپنے آبجیکشنز یا سجیشنز کے لیے، تو انہوں نے شاید اپنی سجیشنز یا جو بھی آبجیکشنز ہیں بھر دی ہیں۔ اب جب پبلک ڈومین میں آئے گا آفیشیلی تو اس میں ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا دینا ہے، اس پہ ہم بات کر لیں گے۔ جی میں نے دور سے دیکھا، پڑھا نہیں، ابھی پڑھوں گا، لیکن اس پہ ٹائٹل جو ہے وہ بیٹریل لکھا ہوا ہے، شاید بیٹریل۔ جی بیٹریل مینز کی دھوکہ دینا، باقی چیزیں وغیرہ جو اس پہ یہ لکھا گیا ہے شاید کہ جو حکومت ہند نے ہمارے ساتھ دھوکے بازی کی یا دھوکہ دیا، بیٹریلز کی۔ پر میری پی ایچ ڈی والوں سے یہ گزارش ہوگی، اس سے پہلے کہ میں وہ پڑھ لوں، کہ وہ یہ بتائیں ہمیں کہ پچھلے 70-75 سال میں 47 سے لے کر آج تک کتنے بیٹریلز ہوئے سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اور کس جماعت نے کیا کیا بیٹریل کیا ہمارے ساتھ۔ اگر اس کا بھی وہ وائٹ پیپر جاری کرتے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ایک تو انہوں نے کیا، اب اپنے بارے میں اگر کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لوگوں کو بھی پتا چلتا کہ کس کس سیاسی جماعت نے کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا یا غلط وعدوں کے طور پہ لے کے ان سے ووٹ لے کے آج ہماری وہ حالت کر دی جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں۔ لانس نائک بشیر احمد کا جسد خاکی آج ان کے آبائی علاقے بڈگام کے وہاں پورا علاقے پہنچایا گیا۔ علاقے میں صف ماتم بچھ گئی اور ہر آنکھ نم تھی۔ مرحوم بشیر احمد فوج میں بھرتی تھے اور حال ہی میں ان کی پوسٹنگ لیہ میں ہوئی تھی، اور وہاں کچھ ہی دن گزارنے کے بعد وہ برین ہیمریج کی وجہ سے فوت ہوئے۔ مرحوم بشیر احمد کچھ دن قبل فوت ہوئے تھے اور موسم میں خرابی اور دیگر رسومات کی وجہ سے آج کچھ روز بعد ان کا جسد خاکی وہاپورہ پہنچایا گیا۔ فوج کی جانب سے وہاپورہ میں لانس نائک بشیر احمد کو گلہائے عقیدت پیش کیا گیا۔ بشیر احمد کے پسماندگان میں ان کی والدہ، بیوہ اور 4 لڑکیاں شامل ہیں۔ رشتہ داروں کے مطابق وہ بے سہارا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ مرحوم کے اہل خانہ کی طرف توجہ دی جائے۔ جو کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اچانک سے انہوں نے سر کو پکڑنا اسٹارٹ کیا، میرے سر کو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد اتنی ہی بات ہوئی تھی، زمین پہ گر پڑے تھے، پھر لے گئے تھے آئی سی یو میں وہاں پہ ایم ایچ، اور اس کے بعد کوما میں چلے گئے تھے۔ ان کی فیملی ہے، ماں ہے ان کی،
और बेटे हैं 4 ही। मुतालबा है सरकार से कुछ हो सके तो करो कुछ, इनका बेसहारा हो गई। कश्मीर के ताजिरों की सबसे बड़ी तंजीम कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन आज तहलील कर दी गई है। श्रीनगर में आज एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका ऐलान किया गया और हाजी खुर्शीद को केयर टेकर बनाया गया है ताकि नए इंतखाबात कराए जाएं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की गई है कि वो नए इंतखाबात करवाने की इजाजत दे। मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश होगी कि मैं यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के जो यूनियन टेरिटरी की जो इस वक्त की क़यादत है, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमें ये एक एक्सरसाइज करने दीजिए, क्योंकि ये हमारा एक हक बनता है। क्योंकि हमारे मसाइल होते हैं, हम हुकूमत तक नहीं पहुँच पाते हैं। हम ट्रेडर और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं और हम वही काम आज भी करेंगे और हमें इसका मौका दे दीजिए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश होगी, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी गुजारिश होगी कि ये हमारे जो इलेक्शन है इनको होना चाहिए। कश्मीर में नशाखोरी के खिलाफ आज एक रैली निकाली गई। नौगाम चौक से रेलवे स्टेशन तक निकाली गई। इस रैली के दौरान नशाखोरी के बारे में जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया गया। शुरका ने कश्मीर में नशे की लत फैलने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत और आवाम को एक साथ मिलकर इस मुश्किल में नौजवानों की मदद की अपील की है। बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको समझाने के लिए हमने आज का ये वॉकेथॉन अरेंज किया है ताकि हम उनको अवेयर करें कि इस चीज़ से दूर रहना है और बाकी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, जैसे स्पोर्ट्स हो गई, जैसे ऐसी एक्टिविटीज़ हो गई, आर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो इसीलिए हमने आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें। So like my advice is you have to really stop drugs because like to destroy a country we start putting drugs and people start taking it and it destroy. A drug can destroy one person's future. So please say no to drugs. It can make them have anxiety, stress and other things. Besides than drugs we can do fitness, we can do sports, yoga, listen music and have some sort of gain in our life. वादी में तकरीबन 3 साल के वक्फे के बाद 2 मार्च से स्कूल खुल रहे हैं। बच्चे और वालिदैन स्कूलों के खोले जाने पर खुश हैं। बच्चे कुछ दिनों से तैयारियों में जुटे हैं। स्कूली बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन मोड में वो पढ़ते तो हैं लेकिन स्कूल इसका मुतबादिल नहीं हो सकता। हमने स्कूल खोले जाने को लेकर कुछ बच्चों से बात की। मैंने 3 साल से स्कूल नहीं देखा है तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं अब स्कूल देखूंगा। 3 साल के बाद मैं स्कूल देखूंगा। उधरी पे मिलेंगे हम फ्रेंड्स सारे। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या ऑनलाइन मज़ा नहीं आ रहा? ऑनलाइन नेटवर्क भी था, नेटवर्क से हम सुन भी नहीं पा रहे थे सर को। और अब ऑफलाइन, अब आगे सर पढ़ाएंगे हमें। ज़्यादा खुशी किसकी है, फ्रेंड से मिलने की, स्कूल जाने की? अलग होगा ना, इतने टाइम से घर में बैठेंगे तो चेंज हो गया। अब स्कूल जाने में चेंज हो जाएगा, मज़ा आएगा। हाँ मज़ा आएगा। ये तो नहीं मिस करोगे कि घर में फ़ोन पे देखते थे? नहीं, वो तो शाम को घर आते ना, दिन भर तो नहीं होता है स्कूल में। सबसे ज़्यादा खुशी स्कूल जाने की किस चीज़ की होगी आपको? क्लासमेट से मिलेंगे, घर में बोर हो जाते थे अकेले। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू स्कूल्स आफ्टर 3 years। पहले तो आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद 2 साल हम कोविड में बिजी रहे, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस और आज हम फाइनली जा रहे हैं स्कूल। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू स्कूल्स, फ्रेंड्स, टीचर्स सबके साथ, और हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर पाएंगे अच्छी तरह से। एंड इट बी फैंटास्टिक टू गो टू स्कूल्स। शाह विलायत कॉलोनी सेक्टर 7 उमराबाद ज़नाकोट के बाशिंदों का कहना है कि उनकी लेन में कम से कम 1.5 फुट पानी जमा रहता है। अगरचे पिछले 3 साल से लेन ज़ेरे आब रहने की वजह से पैदाशुदा मुश्किलात के इजाले के लिए मकामी लोगों ने मुतल्लिक़ा हुक्काम से बारहा रुजू किया, मगर आज तक लेन की ड्रेनेज और भराई का काम नहीं हुआ। शाह विलायत कॉलोनी के बाशिंदों की ये भी शिकायत है कि लेन के मुत्तसिल खाली पड़ी नशीबी सतह की ज़मीन के अंदर पानी जमा शुदा पानी लगभग जून के महीने तक लेन में पड़ा रहता है। हत्ता कि ज़मीन के मालिक मुश्ताक अहमद शाह साकिन कमरबारी से भी बहुत बार ज़मीन की भराई के हवाले से गुजारिश की गई, मगर इस ज़मीन में कोई कार्रवाई नहीं की गई।
आमने कुलगाम में आज उस वक्त कोहराम मच गया जब यहां किराएदार की हैसियत से रिहायश पजीर एक नौजवान की लाश लटकी हुई पाई गई। बताया जाता है कि महलूक एक निजी कंपनी में काम करता था और उसकी शिनाख्त मुश्ताक अहमद डार साकिन देनोकुंडी मर्ग के बतौर हुई है। महलूक की लाश का जिला अस्पताल कुलगाम में पोस्टमार्टम अंजाम दिया गया, जबकि पुलिस ने केस दर्ज करके तमाम तर लवाजमात पूरे करते हुए लाश को अहलखाना के सुपुर्द कर दिया। जिला कुलगाम में आतिशज़दगी के दो अलग अलग वारदातों में 2 मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। कस्बा कुलगाम में गौहर अहमद खान साकिन शेख मोहल्ला के मकान से आग नमूदार हुई, जिसने पूरे घर को अपनी लपेट में लिया। इस वाक़े में मकान खाकस्तर हुआ और लाखों रुपए के अमलाक तबाह हो गई। उधर केमोह इलाके में दौरान शब मोहम्मद शफी वल्द अब्दुल गफ्फार का मकान नजर आतिश हो गया, जिसमें लाखों रुपए का सामान तबाह हो गया। तहसीलदार केमोह बशीर अहमद ने मुतासरा कुंबे की इमदाद की पहल की और इसे मौके पर 10,000 रुपए फराहम किए। रूत अमिस कर खुदाई रूत यह जिम्मेदार यम डिस्ट्रिक्ट यह सोन जिम्मेदार नफर ये अमसी पे नजर गुजारिश कर योतन ये अमिस चल क्या यमिस बिचारस अम बगैर सहारास कहें हक हमसाई सारे खोत हमसाई हमसाई सज पता यह मेहरबानी कर गुजारिश कर डी सबस यमिस गज भरपूर मदद ग। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खान साहब में बुनियादी सहूलियात के फुकदान से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। यह अस्पताल जिले के एक बड़े हल्के इंतखाब खान साहब के लोगों के लिए कायम है। पार्किंग के साथ साथ टेस्टिंग की सहूलियात का फुकदान है। लोगों का कहना है कि इस अस्पताल में काफ़ी लोग मुनहसर हैं। ऐसे में जिस तरह की गायनिक फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो भी नहीं है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि अस्पताल की तरफ तवज्जो दी जाए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जगह की कमी की वजह से सहूलियात का फुकदान है। इसके इजाले के लिए नया ब्लॉक बनाया गया है। फर्स्ट प्रॉब्लम पार्किंग कहें नंबर टेस्ट वेस्ट मशीन सामान कि अगर खुदा न खास खतरनाक बेमार आ बड़गोम कर पे गो पे SMS वाती माना प्रॉब्लम अलबत्ता डॉक्टर साहब असल बाकी स्टाफ असल मगर ये बाकी प्रॉब्लम टेस्ट मशीन टोटली डॉक्टर साहब मतलब अकी शोब ज डॉक्टर ये कि ब्याक निमो निमो लेडी डॉक्टर यह जन सह रिलेटेड ज्यादा कथ मस्तूरातन समी उसमें थोड़ा इशू है कि अप्रोच रोड अभी उसमें नहीं है। हम चाहते हैं कि पहले उसका अप्रोच रोड बन जाए और बाद में उसको कंप्लीट हम करें, क्योंकि उसका अप्रोच रोड का ये प्रॉब्लम है। अप्रोच रोड नहीं है उसका। एयर अथॉरिटीज़ को टाइम टू टाइम बोला है, हम फिर से उनको बोलेंगे कि पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अप्रोच रोड, ताकि यहाँ जो स्पेस की हमें कमी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पूरी दुनिया में 7वें शिया इमाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का यौम शहादत मनाया जा रहा है। वादी कश्मीर में भी इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस हुसैनी का अहतमाम किया गया। वहीं मरकज़ी इमाम बारगाह बडगाम में अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सैयद हसन की सदारत में सालाना मजलिस हुसैनी मुनक़िद हुई। मजलिस में भारी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। इस दौरान मसाइब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को बयान किया गया। अज़ादारों ने मसाइब करबला को भी याद किया और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में आंसू बहाए। इमाम मूसा काज़िम के बाद उनके शागिर्दों ने पूरी दुनिया में उनकी तालीमात को आम किया। उस ज़माने के पहले औज़ार देखने हैं, हालात कैसे थे। दीन इस्लाम को पामाल किया जा रहा था। खिलाफत जो कि अपनी शक्ल में नहीं रही थी, मलूकियत में तब्दील हो गई थी। शराबखोरी आम थी, रक़्स व लहव लाभ आम था। इस ज़माने में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मनसिब इमामत अंजाम देकर लोगों को राह रास्त पर लाया, तबलीग की, हिदायत की, जिसके नतीजे में हुकूमत वक्त हारून रशीद ने उन्हें जिंदान में डाला। इंसानियत के बका के लिए, इंसानियत को हयात बख्शने के लिए अपने जान का नजराना पेश किया, क्योंकि दौरे हयात में वो दिन रात तौहीद के तरवीज तबलीग में मसरूफ अमल थे।
इमामत की 7वीं कड़ी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के मुनासिबत से हांजीवेरा पटन में शिया एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की जानिब से मजलिस हुसैनी का इनेकाद किया गया। मजलिस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। ज़ाकिरीन ने मरसे अख़वानी करके इमाम मूसा काजिम को खराज अक़ीदत पेश किया। शिया एसोसिएशन के सदर मौलाना इमरान रज़ा अंसारी, आबिद अंसारी और दीगर उलमा ने भी मजलिस में शिरकत की। मजलिस से इमरान रज़ा अंसारी ने इमाम मूसा काजिम की सीरत पर रोशनी डाली। पटन के दीगर जगहों पर भी इमाम मूसा काजिम की याद मजालिस का एहतमाम किया गया। ये एक बहुत ही बड़ा वाक़या था कि हमारे 7वें इमाम उस जुल्मत में, उस तारीखियों में शहीद किए गए जहर से। उन्हीं के पुरसे के लिए हम सब यहाँ हाज़िर हुए हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हैं कि इसी इमाम की शहादत के सदक़े हमें हमारे इस खत्ते को अमन व अमान बख्शे और हम सब को अपनी पनाह में। जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर ने बेली चराना जम्मू में फ़रोग़ तालीम कॉन्फ्रेंस के अनवान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस में जम्मू डिवीज़न के इस्लामी स्कॉलर्स और मुख्तलिफ इदारों के तलबा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर्स ने तालीम और अखलाकी अक़दार के फ़रोग़ के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। नौजवानों और बच्चों ने भी इस मौजू पर इजहार ख्याल किया। इन शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए जिन्होंने गुज़श्ता साल तंजीम के मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया था। आज की ये कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए की है कि आज ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को कि वो तालीम हासिल करें। उनके बच्चे जो है उलूम दीन के साथ आखिरी उलूम भी हासिल करें। इस बारे हमने उलमाए किराम की एक बड़ी टीम को यहाँ दावत दी है जो इस बारे में इस हवाले से अपनी बात उनके सामने रखेंगी ताकि ये बेदार हो जाए और अपने नौनिहालों को इल्म की तरफ रागिब करें। LOC पर अखनूर पालवाला के ज़ीरो लाइन पर फायर बंदी से लोग काफ़ी खुश हैं। लोगों का कहना है कि जब से गोलाबारी बंद हुई है वो गांव में अमन सुकून से रह रहे हैं। पहले बहुत मुश्किल हुआ करती थी। शाम को जब खाना खाने या सोने की तैयारी करने बैठते तो पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी होती थी, मगर अब सुकून ही सुकून है। तलबा भी इत्मीनान से पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग आप खुद देख रहे हैं मेरा एरिया कितना अच्छा लग रहा है। बच्चे बाहर मकान पे घूम रहे हैं, लोग नए मकान भी बना रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। हम डेवलपमेंट भी हो रही है, आप खुद देख रहे हैं हमारे गांव में डेवलपमेंट भी हुई है। बच्चे अच्छे तरीके से स्कूल भी जा रहे हैं। हम अपने घरों में बहुत सेफ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सीज फायर हमेशा के लिए बंद ही हो जाए। अब हमें बहुत अच्छा लगता है। जब पहले फायरिंग होती थी तो हमें दिक्कत होती थी पढ़ाई के लिए और हम स्कूल जाते थे, टीचर जब फायरिंग होती थी तो टीचर हमें जल्दी ही भेज देते थे। लेकिन अब 1 साल से फायरिंग बंद है और हमारी रेगुलर स्कूल लग रहा है और हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। फायरबंदी को 1 साल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी नहीं होने से हीरानगर के सरहदी इलाके के लोग भी काफ़ी खुश हैं। लोगों का कहना है कि अब उन्हें कोई डर नहीं होता और ये मुआहदा जारी रहना चाहिए। मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ और हमारे यहाँ फायरिंग बहुत होती थी, पर अभी यहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं और हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। पहले यहाँ फायरिंग होती थी तो सब कुछ स्कूल बंद हो जाते थे और पढ़ाई का बहुत नुकसान होता था। हम आज चाहते हैं कि ऐसा ही होता रहे, पाकिस्तान फिर से फायरिंग ना करे। सरकार ये आखना भी गोलाबारी मुड़िए एक कम नहीं चाहिए। असें नहीं अस बार्डर पर रोने वाले निक्के निक्के बच्चे वाले माल अच्छी है। असें ये कम चाहिए नहीं है भी बार्डर पर फायरिंग हुए। डंगर पिछले साल साढ़े मरी गए, नुकसान गया बहुत। घर कोला वो भी सड़ी गए, घोड़े मरी गए, मेहियां मरी गई, गाय मरी गई, बहुत नुकसान होया पिछले साल साढ़ा। अस नहीं चाहते कि ये मुड़िए ये कम हुए, गोलेबारी वाला कम नहीं असें चाहिए। आज खुशी कन्नै अस फैक्शन करा ने, बड़ी अच्छी तरीके ने बोले ने, एक दूसरे ने मिले गिले चला ने। फौज भी साड़ी हिफाजत करा दी है, सरकार भी हिफाजत करा दी है, सबके बहुत अच्छा चला था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फायरबंदी मुआहदे का 1 साल पूरा होने पर पुंछ के सरहदी गांव के लोग खुश हैं। लोगों का कहना है कि फायरिंग का तबादला नहीं होने से वो लोग सुकून में हैं। LOC पर अमन बरकरार रहना चाहिए। अभी जो है ना, अभी ठीक है। हमारे बच्चे उधर उधर जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। दिन भर या रात में हमें कोई परेशानी नहीं है। बॉर्डर में
बहुत सुकून से रह रहे हैं। तो इसलिए ऐसे ही जैसे अभी माहौल इस साल का है, ऐसे हमें आगे भी होना चाहिए और ये हम लोग यही चाहते हैं। हमारे लोग जो लोग हैं वो काम करने से बड़े डरते थे, क्योंकि कोई पता नहीं है कहाँ से शेलिंग होगी, कहाँ आगे शेलिंग पड़ेगा और हमारा जो नुकसान हो, माल मवेशी और इंसान का जो नुकसान होता है, तो कोई इंतजाम हुआ तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ। पहले अंदर भी रोके रहना, गर्मी भी ऐसी नहीं सब पका नहीं, कोई पानी तो खैर बंद हो जाए तो बड़ा सुकून है। अच्छे सोचा दिन तक मैं फर्स्ट क्लास अल्लाह शुक्र से वैसे रखा। म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने कहा कि अनंतनाग जिला मकाम की सदर मकाम की तारीखी हैसियत और शान बहाल करने की गर्ज से सरकार की जानिब से कई अहम प्रोजेक्टों पर अमल आवरी की जा रही है। आशाजीपुरा बस स्टैंड का संग बुनियाद डालने के बाद हिलाल शाह ने कहा कि तामीर और तरक्की के लिहाज से ये बस स्टैंड काफ़ी अहमियत का हामिल होगा और इससे अनंतनाग की अंदरूनी सड़कों पर ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल से भी लोगों को काफ़ी हद तक राहत नसीब होगी। शहर में ट्रैफिक जामिंग को दूर खत्म करने के लिए जो जनरल बस स्टैंड एग्जिस्टिंग था, वहाँ पे जो भी गाड़ियाँ पहलगाम, अशमुकाम, हापतनाड़ या चित्रगुर एरिया से वो उस अड्डे में आएंगी। इस वक्त हम यहाँ पर आशाजीपुरा में हैं, यहाँ से जो भी डूरू वेरनाग कोकरनाग साइड की जो भी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आएंगी। इसी तरीके से कुलगाम काजीगुंड की गाड़ियाँ वजीर बाग के पास जिसको मुंतखब किया गया है और एक स्टैंड वहाँ पे। इसका सारा मुद्दा मकसद यही है कि जो भी शहरों के बीचों बीच जो स्टैंड कई सारे थे उनको शहर से बाहर, उतना बाहर भी नहीं, ताकि लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को सहूलियात हो, लोग जो मुश्किलात होते थे वो दूर हो और शहर में जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो सही चले। सीनियर सियासी व समाजी कारकुन इमरान अमीन शाह ने यूक्रेन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए वहां से जम्मू कश्मीर व मुल्क के दीगर तलबा की बहिफाजत वापसी पर मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। इमरान शाह ने उम्मीद जाहिर की कि बाकी तलबा और दीगर अफराद की वापसी को मुमकिन बनाने के लिए सरकार मजीद ठोस इक़दामात उठाएगी। इमरान शाह ने धोनीचक अनंतनाग में एक सियासी इजलास में शिरकत की। कश्मीर के नौजवान वहाँ पे डिफरेंट कोई MBBS कर रहा है, कोई इंजीनियर कर रहा है, कोई पढ़ने के लिए गया है, तो उनको बाहिफाजत अपने घर लाया जाए। और हम अप्रिशिएट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कि उन्होंने 24/7 हॉटलाइन रखी है नई दिल्ली में, ताकि कंटेक्ट करें, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटेक्ट करें, और हम चाहते हैं कि वो महफूज तरीके से अपने अपने घर पहुँचें। एनसी के सीनियर लीडर और साबिक MLA मेंढड़ जावेद राना ने मेंढड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी हुकूमत से इस बात की अपील की कि यूक्रेन से सभी तलबा को जल्द से जल्द मुल्क वापस लाया जाए। वहीं उन्होंने यूक्रेन में फंसे तलबा से हौसला रखने की बात कही। अब ये भी अप्रीहेंशन है कि उनके मोबाइल जो हैं ये डाउन हो जाएंगे और कोई कम्युनिकेशन भी खत्म होने का वो है। तो मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और कि वो फौरी तौर पे इंटरवीन करें और जितने भी बच्चे हमारे फंसे हुए हैं उनको वापस वतन लाने की कोशिश करें, क्योंकि एक इंसानी जानों का एक मसला है, एक बहुत बड़ा मसला है। जिन वालिदैन ने बच्चे जो हैं वो तालीम के लिए भेजे थे और वो आज काफ़ी दिनों से इस परेशानी में मुब्तला है। और मैं वालिदैन से भी गुजारिश करूंगा, तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस मुश्किल टाइम में हौसले से इसको टैकल करें। सब लोग मिलकर दुआ करें कि हमारे फंसे हुए जो बच्चे हैं इस मुश्किल टाइम में वो निकल के आए। DDC चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हदबंदी कमीशन के काम की सताइश की। ताज़ीम अख्तर ने कहा कि पुंछ की तीनों असेंबली सीट को पहली रिपोर्ट में ST के लिए रिजर्व किया गया था, जिसमें लोगों में नाराजगी थी। तहम इस पर मुलाकात के बाद ये मसला हल हो गया। हमारे यहाँ डिलिमिटेशन कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी है उसको लेके उसमें मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी काउंसिल की तरफ से इनको सबको, पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूँ। खास करके LJ साहब को मुबारकबाद देती हूँ कि जिन्होंने पुंछ हवेली की जो सीट है वो रिजर्व की है, जिसमें हमारे बहुत पॉलिटिकल लीडर्स हैं हर मज़हब से, ताकि वो अपना कैरियर जो है वो दिखा सके, लड़ सके, और जो हक है उनको वो उन हक मिलना चाहिए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। करगिल में -12 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत में पल्स पोलियो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। LHDC के कारगुजार चेयरमैन आगा सईद अब्बास रिजवी ने एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए सेहत मोहसिन अली के हमरा
ضلع اسپتال کرگل میں پروگرام کا آغاز کیا۔ ضلع میں 382 بوتھ قائم کیے گئے۔ دراس اور زنسکار میں بھی پولیو مہم چلائی گئی۔ ہم نے خصوصاً زنسکار کا پچھلے 1 مہینہ پہلے ہم نے وہاں پہ ویکسین پہنچایا ہوا ہے، تو زنسکار جیسے علاقے میں، جیسے دراز جیسے علاقے میں جہاں جہاں ہمارا آلریڈی وہاں پہ ویکسین پہنچا ہوا ہے، ہماری ٹیم اس پہ وار فوٹنگ لیول پہ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، وہاں پہ بوتھ پہ ویٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جتنے بھی بینیفیشریز وہ آ جائے اور اپنے گزرتے وقت کے ساتھ کرگل میں بھی جرائم میں اضافہ ہوا ہے، جس پر قابو پانے کے لیے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر طلباء اور حاضرین کی رہنمائی کی گئی کہ وہ سوشل میڈیا کا کس طرح استعمال کریں۔ طلباء کو سوشل میڈیا کے منفی اور مثبت اثرات کے بارے میں بتایا گیا۔ آج کل کی اگر یوتھ کی بات کریں تو وہ جو ہے زیادہ تر جو ہے نیگیٹو امپیکٹس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، جیسے کہ ہریسمنٹ کی بات کریں تو یہ بہت چیزیں ہو رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ خود کی سچائی جو ان کی ریالٹی ہے اس کو چھپا کے وہ اپنے آپ کو ایک نئے طریقے سے وہ کریٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کے اینزائٹی، ڈپریشن کے شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ پورے اسٹوڈنٹ فریٹرنیٹی کی طرف سے بھی میں یہی کہوں گی کہ اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے کا بہت زیادہ ہمارے لیے بہت ہی یہ ایک امپورٹنٹ تھا، کیونکہ یہ ایک اویئرنیس سیمینار تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح اوبویسلی وی نو، لیکن اسٹل ایک گائیڈنس ہوتی ہے سر، تو ایک اچھی ایک گائیڈنس ہمیں ملی کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا سے نیگیٹیوٹی کی طرف سے ہم نکل کے پازیٹیوٹی کی طرف زیادہ جائیں اور سوشل میڈیا کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ فلرش کریں۔ ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم جس کا یوزز بھی ہو رہا ہے، مس یوز بھی ہو رہا ہے، اور اس کے امپیکٹس پہ ایک سیمینار کرنے کی بہت اشد ضرورت تھی۔ تو اس انیشیٹو کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈپٹی کمشنر کے آرڈر پہ ہم نے یہ انیشیٹو لیتے ہوئے اس سیمینار کو ہیلڈ کیا سر۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے بہت سارے امپیکٹس ہیں سر، تو اس کا خاص چلے کہ آگے اپارچونیٹیز کیا کیا ہے، ایگزامس کیا کیا ہوتی ہے، اس کے لیے کیسے تیاری کرنا ہے، یہ ہم بڑے اسکیل پہ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں۔ سیکنڈ، ہم ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں میڈیا کے ساتھ میں مل کے کہ ہمارے گورنمنٹ اسکیمز کیا کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بہت کم اویئرنیس ہے ان کے بارے میں، ہم کو پتہ نہیں ہے چیزوں کے بارے میں، کیا اسکیمز ہوتی ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے، اس کو کیسے اویل کرنا ہے۔ تو ہم اس کے لیے ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں میں ہی بتاؤں گا ساری اسکیمز کے بارے میں، سو دیٹ لوگوں تک، عوام تک یہ بات پہنچے اور وہ ہر اسکیم کا جو سینٹرل گورنمنٹ کی اسکیم ہے اس کا لابھ اٹھا سکے۔ لیکے آرچری ایسوسی ایشن نے قومی سطح کے کھیلوں کے لیے تیر اندازوں کا انتخاب شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں 3 روزہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کیمپ میں تمام جگہوں سے آئے تیر اندازوں کو ٹریننگ دی جائے گی۔ ہر کیٹیگری میں لے کے جا رہا ہے، اور ساتھ میں کرگل سے بھی 27 تاریخ کو ہر کیٹیگری میں ٹاپ 10 لیں گے، تو 28 تاریخ کو ہر ڈسٹرکٹ، دونوں ڈسٹرکٹ کے ٹاپ 10 کو کمپٹیشن کیا جائے گا، اس میں سے ٹاپ 10 پھر سلیکٹ کریں گے۔ تو اس کے بعد اس ٹاپ 10 کو آنے والے جب تک نیشنل ایونٹس نہیں آئیں گے تب تک سب سے پہلے ہم یہی سینئر مینس وومنس کا کوچنگ رکھیں گے جو ٹاپ 10 ہے۔ اب کمپٹیشن جانے سے 3 یا 4 دن پہلے ہم ٹاپ 10 میں سے صرف لداخ کا ٹیم چنے گا، اس میں ٹاپ 4 بوائز، ٹاپ 4 گرلز ہر کیٹیگری میں چنا جائے گا، تو اس کو ہم نیشنل کے لیے بھیجنے جا رہا ہے۔ لداخ کی آرچری ایسوسی ایشن نے کھیری سلطان چو اسپورٹس اسٹیڈیم میں تیر اندازی کے مختلف زمروں میں قومی سطح کے مقابلے کے لیے ایک میگا سلیکشن ٹرائل کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر آغا سید عباس مہمان خصوصی تھے۔ اس میگا سلیکشن ٹرائل میں پورے کرگل سے 55 تیر انداز شرکت کر رہے ہیں۔ تیسرا فائر اینڈ فیوری فائر آئس ہاکی کپ 2022 اختتام پذیر ہوا۔ اس میں مردوں کی 11 جبکہ خواتین کی 7 ٹیموں نے حصہ لیا۔ پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں کو ٹرافی، سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات دیے گئے۔ ٹیم سینئر کے لیے، اور مجھے لگتا ہے ان کے لیول کے گیم اور ہمارے لیول کے گیم بہت فرق ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ ونٹر میں صرف 2 مہینے کھیلتے ہیں اور وہ پورا ایئر کھیلتے ہیں، تو پھر بھی ہم کمپیٹ کر پاتے ہیں۔ مطلب ہارتے ہیں یہ بات نہیں ہے، جیتتے بھی ہیں ہارتے بھی ہیں، مگر ایسا نہیں ہارتے کہ مطلب وہ اتنا برے سے ہار گئے۔ تو سوچنے والی بات ہے، اگر یہ رنگ بن گیا اور اچھا کوچنگ مل گیا اور آئس ٹائم زیادہ مل گیا تو وی کین ٹیک آور گیم ٹو نیکسٹ لیول۔ دراس ونٹر کارنیول 2022 مقابلے کا انعقاد دراس بریگیڈ کے ذریعے کیا گیا، جس کا مقصد اس سرمائی کھیل میں مقامی ٹیلنٹ کو فروغ دینا ہے۔ افتتاحی میچ ہمالین ہاکس اور ٹائیگر ہل گوشن کے درمیان کھیلا گیا۔ لیگ کے میچز 25 فروری سے 28 فروری تک کھیلے جائیں گے، جبکہ فائنل 2 مارچ کو کھیلا جائے گا۔
आइस हॉकी भी है, आइस स्केटिंग भी है, पेंटिंग कंपटीशन भी है, आर्चरी कंपटीशन के साथ साथ सिंगिंग और फोक डांस के भी यहाँ प्रोग्राम है। कुल मिला के इस द्रास जो दुनिया का सरद तरीन इलाका है, जो काफ़ी मशहूर है सर्दियों के लिए, इस सर्दियों में एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए इंडियन आर्मी ने एक अच्छा सा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। उसके लिए ये टूर्नामेंट आर्मी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम के बाद यहाँ पहली बार इस साल का पहला टूर्नामेंट चला है आर्मी ने, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छे से इंतज़ाम भी किया है इन लोग ने। बलिसा के कहर इलाके के मकामी नौजवानों ने जंतरून धार की खूबसूरती और सयाहती सलाहियत को दरियाफ्त करने के लिए जंतरून चलो की पहल की और इंतजामिया से इस खूबसूरत मकाम को सयाहती नक्शे पर लाने का मुतालबा किया। देखिए बलिसा से फिरदौस खांडे की ये रिपोर्ट। बलिसा के कहरा इलाके के मकामी नौजवानों ने जंतरून धार की खूबसूरती और सयाहती सलाहियत को दरियाफ्त करने के लिए जंतरून धार चलो की पहल की। कहरा, ठाटरी और चिराला तहसीलों के संगम पर वाक़ई ये घास का मैदान जो 8 से 9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समाजी कारकुन आसिफ इकबाल भट्ट ने इस खूबसूरत मकाम तक पहुंचने और इसके सयाहती इम्कानात को तलाश करने पर इंतजामिया, मकामी नौजवानों और बुजुर्गों का शुक्रिया अदा किया। नौजवानों का कहना है कि बलिसा के इस खूबसूरत मकाम को भी सयाहती नक्शे पर लाने की जरूरत है। कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाते हैं, यही अपील करते हैं कि ये बर्फ़ की लंबी चौड़ी चादरें और ये खिलते हुए मैदान और ये हिमालय और पीर पंजाल के आसपास के यहाँ के जो कोहिसार अपील कर रहे हैं कि मुझे जो है रोड के साथ कनेक्ट किया जाए। कि अगर बाहर से टूरिस्ट रात के लिए आएंगे तो उनको यहाँ पे रहने के लिए जो है प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होगी। अगर टूरिज़्म हट होगा, प्रॉपर रोड होगी और बाकी भी जो बेसिक बुनियादी ज़रूरत है एक टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो अगर यहाँ पे होगी तो ज़रूर ये भी है जम्मू कश्मीर के जो बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें जंतरून का नाम भी होगा। दरियासना मकामी लोगों ने जंतरून धार पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम दस्तियाबी को उजागर किया और सयाहत को फरोग देने के मकसद से रोप वे प्रोजेक्ट का मुतालबा किया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द कुदरत के मनाजिर को जो है अगर इसका लुत्फ लेना है तो इस जंतरून को जो है टूरिज्म स्पॉट में लाए। लोग इस नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे तो जैसे लोग गुलमर्ग जाते हैं, लोग पहलगाम जाते हैं, इन जगहों पे इतना टूरिस्ट ट्रैफिक है कि वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सुधर चुका है। तो इन जगहों को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि यहाँ की तरफ थोड़ी तवज्जो दी जाए। SDM ठाटरी अथर अमीन जरगर ने कहा कि इंतजामिया ने इलाके की सयाहती सलाहियत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे बनाए हैं। ये तजवीज़ वजारत सयाहत को इरसाल कर दी गई है। इस जगह का बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन अभी तक बदकिस्मती थोड़ी बहुत कि अभी तक यहाँ पे रोड की एक्सेस नहीं है। 3-4 किलोमीटर हर तरफ से पैदल चलना पड़ रहा है। इंशाल्लाह उस पर काम किया जाएगा और जिस तरह का इस जगह का पोटेंशियल है, होपफुली नेक्स्ट ईयर यहाँ गाड़ी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये जगह एक्सप्लोर की जाए। वादिया कश्मीर की तरह ज़िला डोडा के भी भलेसा एरिया में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां टूरिज़्म का पोटेंशियल है, लेकिन इंतज़ामिया की आंखों से ओझल हैं। यहाँ लोगों ने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि इस एरिया को टूरिज़्म मैप पे लाया जाए। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जतरून टॉप, गुंदो भलेसा। वादी कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है और बहुत से इलाकों को महकमे सयाहत ने नज़रअंदाज कर दिया है। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला इलाका शोपियां ज़िला है। यहाँ के कई मकामात को सयाहती नक्शे पर लाया जा सकता है, लेकिन मुतल्लिक़ा महकमे की अदम तवज्जुही की वजह से ज़िले में सयाहत से मुतल्लिक़ कोई सरगर्मी नज़र नहीं आती। पीर की गली को अगरचे PDP की क़यादत वाली BJP हुकूमत ने टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया, तहम ऐसा कोई बुनियादी ढांचा नज़र नहीं आया जो इस अथॉरिटी का जवाब पेश कर सके। ये इलाका मकामी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रोज़गार पैदा कर सकता था, लेकिन अगर कोई कोशिश करता। ज़ुबजान, शुक्रो और दीगर इलाकों में भरपूर सयाहती सलाहियत मौजूद है, ताहम इंतज़ामिया की जानिब से इन मकामात को सयाहती नक्शे पर लाने की कोई ख़ास कोशिश नहीं की जा रही है। टूरिज्म के हवाले से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे आइस स्केटिंग, ये ट्रैकिंग, मतलब बाकी चीज़। शोपियान की तरफ जैसे कोई आ ही नहीं रहा है, खासकर डायरेक्टर टूरिज्म कभी हमने देखा ही नहीं है, कभी एक दफ़ा भी उसने शोपियान की तरफ रुख नहीं किया है, जबकि बहुत सारे लोग वो अब
नवंबर में ही डिफंग हो जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में ही डिफंग हो जाते हैं, जबकि बैंकों से फाइनेंस लिया हुआ है, कोई काम नहीं चल रहा है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि हदबंदी कमीशन की तैयार करदा रिपोर्ट से लोगों के दिल मजरूह हुए हैं, जबकि पार्टी रिपोर्ट के हक में नहीं है, क्योंकि असेंबली हलकों का जोड़ तोड़ गलत तरीके से अमल में लाया गया। एनसी का एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन आज टाउन हॉल कुलगाम में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। 0.93 लाख पॉपुलेशन को एक सीट दी है जो डूरू है। यहाँ पर सिमिलर पॉपुलेशन जम्मू में है, 3 सीटें मिली है, बनी, माता वैष्णो देवी और दूसरा पाडर। 3 सीटें जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जम्मू प्रोविंस में मिली है इतनी आबादी को, और जबकि कश्मीर में इतनी आबादी को सिर्फ 1 सीट मिली है। तो ये कैसी जस्टिफिकेशन है? हमारा कल्चरल नाम्स पे अटैक किया गया, हमारे रिलीजियस नाम्स पे अटैक किए गए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन से पैरामीटर लेके चल रहा है। पार्टी का स्टैंड हमने वाज़ह किया है, वो आपके सामने भी आ गया है कि हमको ये काबिल कबूल डिलिमिटेशन कमीशन नहीं है, बिकॉज इसका एस्टेब्लिशमेंट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिकॉज जो इसका पेरेंट एक्ट है हमने वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में इस बात पर जोर दिया गया कि मौजूदा सूरत हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अहम रोल बनता है और इसलिए इस नाजुक मोड़ पर तमाम वर्कर्स को अपना रोल अदा करना चाहिए। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल रशीद शेख, ब्लॉक सदर अब्दुल सलाम मलिक और साबिक यूथ सदर जिला पुलवामा GM कांतरू भी मौजूद थे। माजी में नहीं जाना चाहता हूँ, अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ बड़ा वोट है, कमिटेड वोट है, वेवरिंग नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अगर इलेक्शन में हमें आना पड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को त्राल से लड़ना पड़ा, तो इंशाल्लाह सीट हमारी होगी और जीत हमारी होगी। हम जीत दर्ज करेंगे और ये आपसे वादा है, अल्लाह से भी मुझे यही तवक्का है कि वो हमारी मदद ज़रूर। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने कुपवाड़ा में मौसमियात के दफ्तर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस दफ्तर के क़याम से ज़िले के लोगों को साइंसी बुनियादों पर मौसम की जानकारी फराहम करने में महकमे को आसानी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों और मेवा बागात के मालिकान को फ़ायदा हासिल होगा। अब कुदरत के साथ काम करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैंने जैसे हम आप मेरे इंटरव्यू ले लेंगे, अब इसको बंद करेगा तो बंद हो जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। जिस चीज़ को बंद करना आपके हाथ में है। अब मौसम को कंट्रोल करना इट्स नॉट इन आवर हैंड। कंट्रोल, वी आर नॉट कंट्रोलर, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जैसे कंडीशन अभी इवॉल्व हो रहा है उसके हिसाब से आने वाले दिनों में क्या होगा, मतलब एक प्रोजेक्ट करके हम बताते हैं। डोगरी ज़बान में एक किताब नशे शा देश बचाना का अखनूर में रस्म इजरा किया गया। तकरीब में साबिक वजीर और जम्मू कश्मीर BJP के नायब सदर श्याम लाल शर्मा और साबिक रुकन असम्बली देवेंद्र सिंह राणा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर एक कवि सम्मेलन भी मुनक्किद किया गया, जिसमें डोगरी के मशहूर शोरा ने अपनी नज़में सुनाई। क्योंकि ड्रग्स जो हैं वो एक ऐसा नासूर है कि वो इलीगल है और वो एक नासूर है और वो हमारे समाज के अंदरूनी हिस्सों को खोखला कर रहा है। और मैं आपके साथ इस बात पे ज़रूर मानता हूँ कि शराब जो है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। शराब हो या कोई भी नशा हो वो समाज के लिए घातक होता है, कोई वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन शराब को ड्रग्स के साथ मत लिंक करिए। ड्रग्स जो है वो बिल्कुल घातक है और ड्रग्स का जो मेनेस है उसमें एक सामाजिक, सरकारी और एक जॉइंट हमारी एक एफर्ट होनी चाहिए कि हम उसको वहाँ इस चीज़ को अपने समाज से निकाल के फेंकें। और अब JK राउंड अप। नेशनल पल्स पोलियो मुहिम के एक हिस्से के तौर पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में एक नौज़ायदा बच्चे को पोलियो के खतरे पिलाकर पल्स पोलियो प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर चीफ मेडिकल अफसर बारामूला के अलावा महकमे सेहत के दीगर अफराद मौजूद थे। पूरे सोपोर में पल्स पोलियो मुहिम का इनेकाद किया गया और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन की इजाफी खुराक पिलाई गई। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए तमाम वबाई अमराज के प्रोटोकॉल को यकीनी बनाते हुए पल्स पोलियो मुहिम का इनेकाद किया गया। बारामूला के प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुनियार में डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ, डिप्टी CMO बारामूला और ब्लॉक मेडिकल अफसर बुनियार ने पोलियो मुहिम का आगाज किया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुनियार में डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ ने एक बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाई। बुनियार में पल्स पोलियो के लिए 60 मराकज़ कायम किए गए हैं। महकमे सेहत के अलावा
आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स और दीगर मुतल्लिका महकमों के अमले की खिदमात भी इस मुहिम के लिए हासिल की गई। बडगाम में भी आज 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस सिलसिले में सीएमओ ऑफिस बडगाम में डीसी बडगाम ने इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने जानकारी दी कि अगर किसी बच्चे को पोलियो की खुराक न मिल पाए तो कल और परसों हेल्थ अमला घर घर जाकर इस मुहिम को पूरा करेंगे। पल्स पोलियो मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने सीएमओ ऑफिस पुलवामा में किया, जहां उन्होंने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। जिला पुलवामा में आज 8 लाख से ज्यादा 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो के कतरे पिलाए गए। एडीसी त्राल शब्बीर अहमद रैना ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल में पल्स पोलियो मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर पीएमओ त्राल वीरेंद्र सिंह उनके हमरा मौजूद रहे। रैना ने बताया कि सब डिस्ट्रिक्ट में 130 पोलियो मराकज कायम किए गए हैं। कुपवाड़ा जिले में 1,40,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सीएमओ की मौजूदगी में एक नौजायदा बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज किया। सरहदी इलाकों के साथ साथ करना, केरन और मछल में भी 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। अनंतनाग में एडिशनल डीसी शेख गुलाम हसन ने पल्स पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। सीएमएच अनंतनाग में नौजायदा बच्चे को पोलियो के मुखालिफ कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया गया। जिला अनंतनाग में लगभग 1.5 लाख बच्चों को पोलियो के मुखालिफ कतरे पिलाने का हदफ है। जीएमसी डोडा में पल्स पोलियो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डीसी डोडा ने मुहिम का आगाज किया। जिले भर में 521 मराकज कायम किए गए, जहां बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। आइंदा 2 दिनों तक घरों में जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। पुंछ में भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। डीसी पुंछ इंद्रजीत ने इस मुहिम का इफ्तिताह किया। 3 दिनों तक चलने वाली इस मुहिम के तहत 5 साल से 8 साल के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। गुज़श्ता महीने बानिहाल के बडगाम भागों में आग की एक हौलनाक वारदात में 3 कुंबे अपना सब कुछ खो बैठे थे। अभी तक वो सरकारी इमदाद के मुंतजर हैं। मुतासरीन का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर रामबन की तरफ से उन्हें टेंट, कंबल और बर्तन फराहम किए गए। फौज की तरफ से उन्हें स्लीपिंग बैग दिए गए थे, लेकिन मुस्तकिल छत के लिए अभी कुछ नहीं किया गया है। अशपुरा काजियाबाद लिंगेट में बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी की सदारत में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। जावेद कुरैशी ने वर्कर्स पर जोर दिया कि बीजेपी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। अखनूर में फौज की जानिब से सिविल मिलिट्री कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की। सिक्योरिटी से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फौज ने कहा कि सिक्योरिटी की बरकरारी में शहरियों का भी अहम रोल है। इस दौरान फौज की फलाही सरगर्मियों की जानकारी दी गई। शराब की दुकानें खोलने की तजवीज़ पर भद्रवा के गजबत पंचायत के लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हुकूमत से इस तजवीज़ को वापस लेने की दरख्वास्त की। मुतल्लिका महकमे को वाइन शॉप को दोबारा किसी और इलाके में मुंतकिल करने की भी अपील की। महाशिवरात्रि त्यौहार के मौके पर महकमे फिशरीज की जानिब से पुलवामा में मुख्तलिफ मकामात पर ट्राउट मछलियाँ मैसर की गईं। महकमे ने इस बार पुलवामा के ट्राउट फार्मों के अलावा खुसूसी मोबाइल वैन के जरिए भी मुख्तलिफ मकामात पर पंडित बरादरी के लिए ट्राउट मछलियाँ दस्तियाब रखी थीं। ट्राउट मछलियों की सेल कल भी दस्तियाब रहेगी। कश्मीरी पंडित अपने आबाई वतन को बहुत याद कर रहे हैं। कश्मीर में उनके पड़ोसी भी उन्हें याद कर रहे हैं और शिवरात्रि त्यौहार की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि त्यौहार खुशी का पैगाम लेकर आएगा। नाजरीन, इस मौजू पर लड़ी शाह अपने खास अंदाज में तबसरा कर रहे हैं। आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बटन सारने चेहरत मुबारक, बटन सारने चेहरत मुबारक, कशीर आज सारी मिसकरान साक, कशीर आज सारी मिसकरान साक, बटन सारने चेहरत मुबारक, हम साई सारी करान छक याद, हम साई सारी करान छक याद, फोनस पेट जुतुक मुबारकबाद,
फोनस पेट दुतुक मुबारकबाद माय वुनि दिलन मंज अथन का शक माय वुनि दिलन मंज अथन का शक बटन सारने च हैरत मुबारक कशीर आज सारी मिस करान सक हैरत सालान उस अलग अहमियत हैरत सालान उस अलग अहमियत खत्म गई वार वार स्वरवायत खत्म गई वार वार स्वरवायत वुचु कथ बई बंद तिस लोग ब्राक वुचु कथ बई बंद तिस लोग ब्राक बटन सारने च हैरत मुबारक कशीर आज सारी मिस करान सक हैरत पेट शीनिन प्यो हसद दस्तूर हैरत पेट शीनिन प्यो हसद दस्तूर फूस नीरन वन गम गच्छन दूर फूस नीरन वन गम गच्छन दूर मुसीबत तुलन गो वारावक मुसीबत तुलन गो वारावक बटन सारने च हैरत मुबारक बटन सारने च हैरत मुबारक कशीर आज सारी मिस करान सक कशीर आज सारी मिस करान सक बटन सारने च हैरत मुबारक